Yes, I am audible or not? Can't you reply? Yes, dear participant, I am audible. Audible, sir. Okay, sir. Okay, thank you. Thank you very much, sir. So today we will discuss about the three other remaining AI tools. First of all, I am sharing my PPT. Okay. Yes, dear participant, welcome to today's sessions on uh, today's sessions. First of all, I remind you the some topic we have already discussed yesterday. Yes, we have already discussed yesterday about exactly, the impact of the AI tools on teaching excellence. We have already discussed about the benefits. We have discussed about the what is the artificial intelligence, and we have learned some tools. For example, education copilot. We have already discussed Google Word. We have already discussed Epic AI. We have already discussed. You know, so there is some uh, the artificial intelligence, rapidly world education, no exceptions. The work of it, the tools can be used automated tasks, personalized learning, and provide real-time feedback to students. है ना? तो benefits क्या है? Automated tasks, personalized learning, है ना? Differential instructions, assessment and feedback, and help teachers to identify the support and struggling students, provide the student with the access and real time feedback and support, है ना? How to use how to use the teaching excellence for AI tools, no? So first of all, we have already discussed choose the right tools, smart, start small, the get feedback from student, monitor student progress, be mindful of the ethical implications of the using AI. And we have already discussed Copilot Educations, Bepic AI, and Google Bard. The day two, we will discuss about the Edu8, Plato, and ChatGPT. First of all, good evening, sir. Okay. First of all, before the discussing of these tools, Edu8, Plato, and ChatGPT, it is these tools are very very important for the teaching and learning. First of all, we should know about exactly what is the challenges of the whenever we are using this tool, what types of challenges come before the teachers. First of all, uh, we discuss about the some challenges, you know. So there are some challenges for when are using the such types of the tools for teaching. AI tools have the potential to revolutionize teaching excellence, but there are some challenges that need to be addressed. Here are few. We will discuss about the some challenges here. Bias in AI model. Exactly what is happening when we are using AI. Now, AI models are trained on data, and if that data is biased, the model the model will also be biased. This can be lead to the AI tools that unfairly favor of the disadvantaged certain group of the students. I am already told you yesterday that this is the data may be correct or data may no, may be not correct. है ना? So this is actually the model which is generated by the
artificial intelligence है ना, there is a lot of the data in the compute system. Whenever you are searching and give the keyword for searching any data, there are some problems created, no, bias in the AI model. Lack of the personalizations. AI tools can be personalized to the some extent, but they often struggle to meet the unique need to the students. This is the especially true for students with disabilities or learning differences, है ना? तो क्या लेक ऑफ पर्सनलाइज उन लोगों के लिए जो दे आर द डिसेबिलिटीज एंड और लर्निंग डिफरेंसेस, तो वो क्या है, लेक ऑफ द पर्सनलाइज है, ठीक है। द अदर वन इज द पोटेंशियल फॉर द एरर. I have already discussed about the potential of error. The AI tools are not perfect and they can sometimes make mistake. This can be frustrating for students and teachers alike, and it can be the lead of the inaccurate assessment for the feedback. तो हमें अपने माइंड में इस चीज को भी रखना है कि इट मे बी द पोटेंशियल्स ऑफ द एरर. तो पोटेंशियल जो एरर्स आते हैं, इट मे बी क्रिएट ए हेडेक है. इट समटाइम मेक द मिस्टेक. और ये मिस्टेक क्या होती है कि क्या यू कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द स्टूडेंट एंड टीचर्स लाइक, है ना. आपको फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है जब आपको लगेगा कि पूरा मैटर बहुत सही है, उसके बाद में कुछ एरर है, तो आप शॉकिंग होंगे, अरे ये एरर कैसे आ गया. तो एक्चुअली एआई गिव यू द लॉट ऑफ द मतलब एरर्स. तो यू शुड अवेयर अबाउट द कि व्हाट इज द एरर इन योर टेक्स्ट. फियर ऑफ द जॉब लॉसेस क्या है. सम टीचर्स फियर दैट एआई टूल्स विल बी eventually replace that. However, it is important for the remember that AI tools are meant to complement, not replace teachers. Teachers still play a vital role in providing personalized instruction, support, and motivation to their students. बहुत सारे टीचर्स को लगता है कि एआई टूल्स हो गया है, एआई टूल्स आ गया है, बहुत फास्ट काम कर रहा है. लेकिन हमें, जब एआई टूल्स आ जाएगा मार्केट में, ये रूमर है कि जब एआई टूल्स आ जाएगा तो क्या होगा, जो पुराने लोग हैं उनकी जॉब्स चली जाएगी. लेकिन ऐसा ऐसा है नहीं. एक्चुअली eventually replace them. AI tools will replace them. However, it is important to remember that AI tools are meant to the complement, not replace the teachers. तो क्या होगा, आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो सोचने और समझने की और राइटिंग की कैपेसिटी है, उसको क्या करेगा, एआई टूल्स इंक्रीज करेगा, ना कि रिप्लेस करेगा, है ना. तो जब आप आने वाले टाइम में आफ्टर द 10 or 20 years यू विल गेट द एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द एआई, है ना. और आज एक न्यूज पढ़ रहा था, एक एक न्यूज है कि आर नारायण मूर्ति ने कहा कि भी जो एआई टूल्स का यूज हो रहा है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. यानी उन्होंने अपनी कंपनी में एआई, जो बैंकों ने कहा दिया कि एआई टूल्स जो बेनिफिशियल नहीं है बैंक के लिए, ये आपकी प्राइवेसी को खत्म करता है. लेकिन नारायण मूर्ति ने कहा कि नहीं, एआई टूल से उन्होंने 60 या 70% का और ज्यादा बेनिफिट हुआ है उन्हें. तो आने वाले वक्त में एआई टूल्स विल बी more and more when everything is depend on the AI tools, है ना. Now तो द फियर ऑफ द जॉब्स, तो आपको कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि अब अगर एआई टूल्स आ जाएगा तो आपकी नौकरी चली जाएगी, बल्कि नौकरी और ज्यादा लोगों को मिलेंगी इसमें, है ना. तो दिस इज द 4 challenges ऑफ द एआई फॉर टीचर्स, है ना. पोटेंशियल्स फॉर द एरर, फियर ऑफ द जॉब, एंड अनदर वन इज बायस इन एआई, लैक ऑफ द पर्सनलाइज. ठीक है. तो ये 4 challenges हैं. हमने क्या डिस्कस कर लिया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बेनिफिट ऑफ एआई फॉर द टीचर्स, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स क्या हैं. हमने चैलेंज के बारे में डिस्कशन कर लिया कि चैलेंजेस ऑफ द
AI for the teachers. We have already discussed about the three AI tool, uh, Education Copilot, Google Bard, and Epic AI. Now, today, we will discuss about the another three AI tool, which is called Eduate, Plato, and ChatGPT. I think the most of all participants know about the ChatGPT. So, without any delay, we will continue. First of all, we will discuss about exactly what is Eduate. Eduate is the design to the help user write better by the providing suggestions, corrections, and guidance. The assistant is the assistant is the intuitive and easy to use, allowing user to quickly improve their writing skill. It support the multiple languages and can be provide feedback in English, Spanish, French, German, Italian, and Portuguese. The app also the offer the feature such as bar count, readability analysis, and plagiarism detections. Overall, Eduate AI is the assistant app, is the great tool for the anyone looking for the improve their writing. Okay. Another one, the Pilato. The Piloto is the web-based application that offers a range of the writing tools to help help user improve their writing skill. The platform includes the features such as the grammar and spell check, word suggestions, and in addition to these basic features, Pilato also provides more advanced tools such as the text analysis, writing style suggestions. The platform is designed to be the user-friendly and accessible with the simple interface and clear instructions. Plato is, is a useful tool for everyone looking to improve their writing, whether for personal or professional purposes. The next one is ChatGPT. What is ChatGPT? This is to the OpenAI chat platform. OpenAI is a company name. So user can use the platform to the test and interact with the OpenAI's language model. The platform allows user to input text prompts and receive the generated response from the language model. The chat platform is the valuable tools for the developers and researchers to explore the capabilities of Open's AI language model. Additionally, it can be used by the businesses and create the intelligent chatbots that can be handle the customer inquiries and supports. So this is the chat GPT. So first of all, we will discuss about the Azure. एक्चुअली जो एजू एड है टीचिंग असिस्टेंट हमें देर आर प्रोवाइड टू अस द थ्री प्रोफेशनल ड्यूटीज देर आर द प्रोफेशनल ड्यूटी एक्सेसिबिलिटी एल वेलनेस ठीक है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट जनरेटर ठीक है ना असिस्टेंट ठीक है क्या है कंटेंट जनरेटर तो आप यहाँ से क्या करते हैं कंटेंट को आप जनरेट कर सकते हैं जो भी आप कंटेंट चाहें आप उसको जनरेट कर सकते हैं ठीक है आप यहाँ से जिस तरह से चैट जीपीटी में चैट करते हैं आप यहाँ से इसको आप चैट करते हैं स्टार्ट चैटिंग विद यू ठीक है तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कंटेंट जनरेटर के बारे में वी विल डिस्कस अबाउट द क्या किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कंटेंट जनरेटर के करेंगे कंटेंट कंटेंट जनरेटर को कैसे हमें करता है कि फॉर एग्जाम्पल okay, I request the all participant kindly write down any subject, any topic which is you have required, है ना उसके उसके साथ हम लोग कोई अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं ठीक है ना अदरवाइज वी विल सेलेक्ट एनी टॉपिक्स है ना तो काइंडली राइट डाउन द चैट बॉक्स योर टॉपिक प्लीज ओके
यस। तो अब ये देखिए हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें चार यानी कंटेंट, जो कंटेंट जनरेटर्स को हमें क्या किया गया है, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था: प्लानिंग, इंफॉर्मेशंस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत एजू एड जो है ना, बहुत ज्यादा इफेक्टिव एंड अपने आप में एकदम कंप्लीट टूल्स है। जो भी टीचर्स इस टूल्स को यूज करेंगे, उनको हर प्रॉब्लम, जो भी उनके सामने प्रॉब्लम होगी, वी कैन वी कैन सॉल्व द एवरी प्रॉब्लम। बहुत सारे फीचर्स है। फॉर एग्जाम्पल, we want to go first of all we will learn here the lesson sheets. तो लेसन शीट क्या है? लेसन्स आउटलाइन, outline with a range of the techniques, strategies and activities aligned to the end objective। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को लेसन सीट के बारे में अगर हम लोगों को जानना है कि फॉर एग्जाम कंपोस्टिंग, डिजिटल सिटीजन कंपोस्टिंग, एग्जैक्टली व्हाट इज अ कंपोस्टिंग। वी फर्स्ट ऑफ देखिए फॉर एग्जांपल लेसन सीट्स। तो लेसन सीट्स के बारे में क्या कहता है टॉपिक, और यहाँ पर आपको क्या करना है, बस एक टॉपिक को आपको क्या करना है, कंपोस्टिंग के एक वर्ड आपने यहाँ पर जब राइट किया ना, तो इनहेंस कर देगा, यानी एआई जो टूल्स की हेल्प से एजुएट क्या करेगा, आपके लेसन सीट को जनरेट कर देगा। तो लेसन के सीट क्या है? Student will be the demonstrate the understanding the composing principle, process and technique and apply to knowledge to effectively manage। अब आपको ये करना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा हमने पिछली बार सीखा था कि आपको किसका क्या सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के बारे में यू आर डिस्कसिंग, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड आर्ट और इनरिचमेंट। ठीक है ना, किसके बारे में? फॉर एग्जाम्पल हमने कंपोजिटिंग के बारे में, साइंस के बारे में डिस्कस किया। और स्टैंडर्ड क्या है आपका? स्टैंडर्ड पोस्ट सेकेंडरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो हमने टॉपिक किया था उस टॉपिक को उन्होंने क्या किया, एलोबरेट कर दिया। और एलोबरेट करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए, स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई their knowledge composing principle, process, technique and effective organic waste of the promoting। यानी हमने एक जो चीज डाला तो हमें क्या कर दिया, एक कुछ टॉपिक्स को हमें इसने टॉपिक क्रिएट करके दे दिया। ठीक है ना। तो जब हमें टॉपिक्स क्रिएट करके दे दिया, तो हम इस टॉपिक के अकॉर्डिंग वी कैन क्रिएट हियर। अब इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने कहा क्या, यूनिट प्लान। वेल, जस्ट मिनट। ओके। तो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? हम कर रहे थे यूनिट प्लान। ठीक है ना। तो यूनिट प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस किए कि फॉर एग्जाम्पल, तो हमें यो जो सीट जो हमें टॉपिक्स ने प्रोवाइड किए ना, तो अब हम क्या कर देंगे इसको, देखिए, ये ये हमने क्या किया, अब हमें जो यहाँ पर उसने जो हमने एक टॉपिक डाला,
उस टॉपिक को इसने एक सिस्टमेटिक, हमने जो कंपोस्टिंग के बारे में डाला, तो कंपोस्टिंग के बारे में क्या हुआ यहाँ पर, हमें उन्होंने एक क्या करके दे दिया हमें, एक पूरा मतलब बना के दे दिया। स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द नॉलेज ऑफ द कंपोस्टिंग प्रिंसिपल processes and technique to effectively manage the organic waste and promote the sustainable practice। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने इनहेंस करने के बाद, जब हमने इनहेंस कर लिया, उसको सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया, तो हम ऐड टू वर्क, तो ऐड टू वर्क प्लेस, जब ऐड टू वर्क प्लेस पे करेंगे तो हमें क्या हुआ, तो देयर आर द गेम नेम कंपोज कंपोजिट, ठीक है, रिव्यू गेम, ठीक है। तो ये सारा पूरा हमें गेम इंस्ट्रक्शंस, गेम के बारे में रूल्स, ये पूरा हमें क्या कर दिया, प्रोवाइड करके, कैन यू कंपोजिट, ये सारे क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड कर दिए। ठीक है। अब इसको ही हम प्लानिंग्स को अगर हम, फॉर एग्जाम्पल, जब ये हमारा सीट था, सीट के बारे में हमने क्या है, ये किसके बारे में आ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमें वो क्रिएट करके दे देता है, ठीक है ना। लेसन सीट्स, ठीक है, लेसन सीट्स के बारे में हमें पूरा, है ना, जीएस एक्टिविटीज, रीडिंग कम्प्रहेंशन, टैक्सनॉमी सेपरेट टुमारो, तो ये सारी चीजों के बारे में क्या हमें उन्होंने लेसन सीट, कंपोस्टिंग प्रिंसिपल, टेक्निक सस्टेनेबल बेस्ट मैनेजमेंट, grade level, postgraduate, any college and level student, object by the end of the lesson student will be able to apply their knowledge, composting principle process, इसके बारे में, period of knowledge, आज का student recall the definition of the composting, ये पूरा हमें है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, प्रैक्टिस असाइनमेंट, टीम बेस्ड एक्टिविटी, सारी चीज के बारे में हमें डीप क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चंस भी, हाउ टू कंपोस्टिंग कंट्रीब्यूट, ये ना पूरी हमें ये जो लेसन सीट्स हमें क्या कर दिया, एक क्रिएट करके दे दिया। लेकिन अगर हम कह रहे यूनिट प्लान, तो हमें क्या करना है, इसी टॉपिक को ये क्या कर देगा, ये यूनिट प्लान करके देगा। जब हम कह रहे हैं यूनिट प्लान, क्रिएट द यूनिट प्लान, तो क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हमें यहाँ से डिलीट कर देना है, ये क्लियर हो गया, है ना। इनहेंस क्या है, इनहेंस क्या है, इनहेंस कर लिया, वो इनहेंस वही चीज होगी। क्या करना है, हम हमें क्रिएट करना है यूनिट प्लान, तो ये क्या हो गया, देखो ये सारी चीज यूनिट प्लान का सिस्टम दे दिया। यूनिट प्लान क्या है, इट विल क्रिएट द यूनिट प्लान, ठीक है ना। तो लेसन वन का क्या कर देगा, प्लान कंपोजिंग प्रिंसिपल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिकलिटी, ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट विल बी डेमोन्स्ट्रेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपोजिंग प्रिंसिपल, है ना। तो क्या है, क्या इंगेज, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपोजिंग, लेसन वन वन दे दिया हमें, ठीक है ना। एक्सप्लेन, एलोबरेट, एवुलेट, ये सारा लेसन टू के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक्सप्लोर, ये सारा, ये सारी चीजों के बारे में ये सारा डिस्कस कर दिया, ठीक है। देखिए देखिए, है ना, पूरा यूनिट क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो क्या कर दिया, ये पूरा यूनिट क्रिएट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर, अगर आज एजू चैट, अगर आप चाह रहे हैं कि एजू चैट से कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, यू कैन राइट डाउन हियर, है ना। तो क्या क्या कहता हूँ, क्या करना है, एलोबरेट दिस टॉपिक फॉर यू, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, अगर आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ये श्योर, आई कैन हेल्प यू लिबरेट द टॉपिक फॉर द यूनिट प्लान, हाउएवर आई विल नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। अब ये कह रहा है कि आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, व्हाट सब्जेक्ट और टॉपिक इट इज यूनिट प्लान फॉर यू, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि आप सब्जेक्ट बताइए यूनिट प्लान का। तो यूनिट प्लान का सब्जेक्ट क्या है, वो आप बता देंगे, उसमें से जो भी कंपोस्टिंग है ना, तो क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, आपको और एलोबरेट करके देगा कंपोस्टिंग का, ठीक है ना। द टाइटल मैजिक ऑफ कंपोस्टिंग, टर्निंग वेस्ट इनटू द रिच सॉइल, ठीक है। तो पूरा देखिए कॉन्सेप्ट एंड स्किल, यूनिट प्लान ड्यूरेशंस आपको और एलोबरेट करके दे दिया, लेसन टू, लेसन थ्री, ठीक है ना। तो ये आपको और एलोबरेट करके दे देगा अगर आप इससे आज करते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं कि इसको आपको कॉपी करना है, तो यू गो देयर एंड कॉपी एंड पेस्ट योर वर्ड प्लेस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको, है ना, अवेलेबल, इसमें बहुत इजीली से अवेलेबल होंगी, ठीक है ना।
तो अब हमें क्या करना है, हमको यहाँ से मेन चीज पे जाना है, ये जो हमारा असेसमेंट है, यू कैन गो दियर एंड यू है, ठीक है, एंकर चार्ट है, ठीक है ना, सीड लेसन्स, ठीक है, एंकर चार्ट क्या है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या है, एंकर चार्ट, यू कैन फाइंड आउट हियर द एंकर चार्ट। और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो इसको, आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कॉपी आराम से कर सकते हो, कॉपी करने के बाद यू कैन पेस्ट एनी फाइल डॉक्यूमेंट, ठीक है, पूरा ये दे रखा है। इसके अलावा है लेसन शीट, जो क्या थी, लेसन शीट के बारे में हमने डिस्कशन किया है ना। तो ये लेसन शीट के शीट बता देगा, लेसन शीट देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेसन शीट्स हमने हमने लिया ना, पेयर्स क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीज आपको बता दे, जो भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है जो चाहिए वो यू कैन गॉट इट, है ना। प्रैक्टिकल असाइनमेंट क्या है, ये सारी चीजें बता देगा आपको, ठीक है। कितना मैटर जनरेट कर रही, कितना आपको इतना, अगर मैटर क्रिएट करते हैं मैन्युअली, यू टेक द 1 वीक, है ना, कम से कम अप्रोक्सीमेटली है। तो इसके अलावा थिंक पेयर शेयर है, जॉक्स में एक्टिविटी, जिक्सॉ एक्टिविटी, जिक्सॉ एक्टिविटीज क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं तो जिक्सॉ एक्टिविटीज, कंपोजिटिंग प्रिंसिपल्स, ये सब ये इट इज इट इज क्रिएट कंपोस्टिंग प्रोसेस, कंपोस्टिंग टेक्निक। इफ यू वांट टू एलिब्रेट द, है ना, बहुत सारा ग्रुप 5, है ना, ये ठीक है, रीडिंग कंप्रहेंशन असाइनमेंट, एक्स एग्जाम्पलर ऐसे रिव्यू, डिस्कशन प्रॉम्प्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको जा रहे हैं रीडिंग कंप्रहेंशन असाइनमेंट, तो रीडिंग कंप्रहेंशन असाइनमेंट के बारे में आपको पूरा दे, कंपोजिंग प्रिंसिपल सस्टेनेबल, पूरा कंपोजिशन दे देगा, पूरा आपको दे दिए पूरा, ठीक है ना। यू कैन, यानी जो भी चीजें टेम्परेचर एंड ये पूरा आपको पूरा कंपोजिशन दे देगा, व्हाट इज द कंपोजिटिंग क्वेश्चंस दे दिया, ठीक है। आपको ट्रू एंड, अगर आप चाह रहे हैं कि इसी टॉपिक पे वी वांट टू ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, है ना, तो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन दे देगा आपको, पूरा ट्रू एंड फॉल्स के जो भी क्वेश्चंस है वो आपको दे देगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आप ये चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू, यहाँ पर जो भी चाह रहा है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो ये क्या कर देगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में ये इट विल बी क्रिएट एन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट टाइटल, डिजाइन एंड इंटीग्रेटेड कंपोजिशन सिस्टम इन कॉलेज कैंपस। तो देखिए पूरा ये आपको क्या कर दिया, एक डिजाइन प्रपोजल डिजाइन कर दिया प्रोजेक्ट के लिए, कि यू कैन मेक द प्रोजेक्ट, ठीक है। इस तरह से आपको डिलीवरीज क्या हो सकती है ना, प्रेजेंटेशन समराइज होता है, एलिवेट द मॉनिटरिंग है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, सस्टेनेबिलिटी, कंपोजिंग प्रोसेस, यानी कि यू कैन, आपने एक वर्ड कंपोस्टिंग, एक वर्ड दिया था, उस कंपोस्टिंग वर्ड से कितना सारा एलोबरेट कर दिया इसने, हर चीज को आपको एलोबरेट करने की कैपेसिटी है एज एड में, है ना। यू कैन गो, है ना, और यहाँ से आप बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म समराइज भी कर सकते हैं, चंक करते हैं, एग्जैक्ट की है, इंक्रीज इलेक्सिल, डिक्रीज इलेक्सिल, ट्रांसफो ट्रांसलेट टू स्पेनिश, जनरेट आंसर की, स्टैंडर्ड अलाई। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इसमें एजुएट में मिल जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अब हमने यहाँ पर जो क्या किया था, प्रोजेक्ट किया, ठीक है, लर्निंग किया, इंगेजमेंट एक्टिविटीज के बारे में ये, इफ यू वांट टू लर्न engagement activity, you can you can create the another देखिए एक्टिविटीज टू गेट स्टूडेंट अटेंशन लेस देन 5 मिनट, क्यूज, ठीक है, कंपोस्टिंग, ये सारी चीजें एक्टिविटीज, अगर आप लर्निंग एक्टिविटीज है तो उसमें आपको ये पूरा आपको क्रिएट करके दे देगा। बिंगो स्टाइल, अगर आप यू वांट टू द बिंगो स्टाइल, यू कैन क्लिक हियर, ठीक है ना, आपको ये क्या कर देगा, बिंगो स्टाइल में ना। हियर इज द एन एग्जांपल ऑफ द बिंगो स्टाइल, द बोर्ड ऑफ द spreadsheet and vocabulary of the statement, composing method, compose file, discussing for organic and topic call sheet. Question: what are the three main component required for the successful composting questions to, ये पूरा क्रिएट करके दे दिया ना, आप कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो यू कैन गो आज द एजुएट चैट, अगर इसके अलावा भी अगर आपको एलिब्रेट नहीं हो रहा है तो यू कैन, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, यू कैन गो द चैट, है ना। चैट क्या करेगा, चैट चैट विल बी एलिब्रेट, है ना, एक्सप्लेन योर क्वारीज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए हमने एक चीज, अब जब हमने सिर्फ यूनिट प्लान के लिए किया था, लेकिन यूनिट प्लान से हमने
बहुत सारी चीजों को यूनिट प्लान की एक एक चिक बैक एक्टिविटीज चांस सा थिंक पेयर शेयर सबके बारे में, ठीक है, हमने वी कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग ओनली फॉर यूनिट प्लान के बारे में हमने सारी चीजों को सीख लिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें जैसे फॉर एग्जांपल एंकर चार्ट, तो एंकर चार्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिखाई दिया था, देखिए ये एंकर चार्ट, दिस इज द एंकर चार्ट, ठीक है। कैटेगरी टू, कैटेगरी ये सब सारी चीजें यू कैन यू कैन यूटिलाइज और दिस, है ना। यू कैन यू कैन इफ यू वांट टू if you want to edit it, you can edit in this, ठीक है, जस्ट एडिट, क्लिक एडिट बटन, ठीक है ना। और यहाँ पर आप, ठीक है, यू कैन, ये फॉर एग्जांपल यूनिट प्लान, ठीक है, यूनिट प्लान को क्या किया, बोल्ड कर दिया, अगर आप चाहते हैं बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दिया, ठीक है। आप चाहते हैं कि हमें इसको इसको हमें इटालियन में करना है, ठीक है, इसको हमें हेडिंग 1 देना है, ठीक है ना, या हेडिंग 2 देना है, या हेडिंग 4 देना है, ठीक है ना। तो हेडिंग 1 इज मोस्ट सब्जेक्ट, तो इस तरह से यू कैन एडिट हियर एंड यू कैन ऐड, आप ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा इसी क्लाउड में, ठीक है। यहाँ से यू कैन कॉपी इट, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, तो ये पूरा कॉपी, पूरा का पूरा ये आपका कॉपी होके यू कैन यू कैन you can copy it in other, if you want to, if you want to change the title here, unit plan, ठीक है ना, you can composting unit plan, ठीक है ना, जो भी आप डालना चाहते हैं, जो भी इट इज क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट, जो भी आप डालना चाहते हैं इतने टाइम पे क्रिएट हुआ, तो यू कैन डू इट, ठीक है ना। द अनदर वन प्रियर नॉलेज प्लस इसके फोल्डिंग, ठीक है। तो ये क्या, ए लिस्ट मेथड ऑफ द इसके इसके फोल्डिंग पीरियड नॉलेज नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट टू द एंगेज विद द टू बी द लर्न मटेरियल, ठीक है ना। प्रियर नॉलेज है ना इसके प्लस इसके फोल्डिंग, यानी कि वो जो भी चीज है वो ऑलरेडी स्टूडेंट को हमें एक्सप्लेन करना है, उसको पहले बताना है कि ये सारी चीजें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, क्लिक करने के बाद और हम इसको कह रहे हैं कि इनहेंस कर दे, तो क्या कर देगा, कंपोस्टिंग को ये इनहेंस कर देगा, क्या 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 कर दिया, चेंज कर दिया। स्टूडेंट विल बी एबल टू एग्जिबिट कॉम्प्रहेंशन ऑफ द कंपोस्टिंग प्रिंसिपल्स processes and technique by the effectively manage organic waste and promoting sustainable practice, ठीक है ना। तो क्या कहा है, ये क्या है, अब हमने इसको क्या किया, इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, यानी जितने भी हमने क्रिएट किए थे उसको हमने सबको क्लोज कर दिया, और यहाँ हमने क्या कर दिया है, ब्लैंक ले लिया, ठीक है, ये ब्लैंक हो गया। तो गो टू ऐड टू वर्क स्पेस, वर्क स्पेस क्या है, ये इसको आप वर्क स्पेस पे ऐड करना है। तो रिक्वेस्टेड पीरियड नॉलेज तो क्या है, तो ये बता दिया आपने, ठीक है। तो क्या है, रिक्वेस्टिंग ऑफ द पीरियड नॉलेज के बारे में आपको बता दिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिसाइकलिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में होने चाहिए। इसके फोल्डिंग ऑप्शंस होनी है, बिगिन द क्लास विद द ब्रीफ रिव्यू ऑफ द रिसाइकलिंग एंड इंपोर्टेंस इन द प्रमोटिंग sustainability, discuss how to composting fits into the larger pictures of the waste management. Conduct a short brainstorming activities where the student list different type of the organic waste material they encounter in their daily lives. Discuss the potential challenges and benefits to the composting each type. ठीक है, तो ये सारी चीजों को हो गया। अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है ये सारी चीज आपने बनाया, लेकिन अब इसको ना स्लाइड आउटलाइन में बना दिए। तो ये स्लाइड अब यू वांट टू, इफ यू वांट टू क्रिएट स्लाइड आउटलाइन, तो ये क्या कर देगा आपको, यहाँ से क्रिएट स्लाइड आउटलाइन, ठीक है। तो स्लाइड 1, ठीक है, आपको स्लाइड 1 की क्या है, ठीक है, इंट्रोडक्शन इज स्लाइड 1, ठीक है ना, ये पूरा दे दिया। स्लाइड 3, स्लाइड 2, ठीक है ना, स्लाइड स्लाइड 6, ये सारी चीजों के बारे में आपको ये इसने 15 स्लाइड्स एंड कंक्लूजन स्लाइड, रिकेप ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपोस्टिंग प्रिंसिपल प्रोसेस, ये आपको पूरा एक एक तरह से एक आपको पीपीटी क्रिएट करके दे दिया। यानी आप अगर पीपीटी क्रिएट करना चाहते हैं आप उसके किसी भी उस पर, तो यू कैन
यू कैन वाइज द कंपोजिंग कंसिडरेशन। देखिए किस तरह से 15 स्लाइड्स है ना, इट क्रिएटेड द 15 स्लाइड, नहीं 16 स्लाइड्स, 16 स्लाइड्स है ना, ठीक है, 16 स्लाइड क्रिएट करके दे दिया। तो आप क्या कर सकते हैं आप, सॉरी 17 स्लाइड्स थी यार, है ना। लिस्ट ऑफ द सोर्सेज यूज इंफॉर्मेशन यूजेज, ठीक है। तो ये सारी चीज दे दिया। अगर आप चाहते हैं टैक्सोनॉमी इसके फोल्डिंग, तो वो भी आपको क्रिएट करके दे सकता है। स्लाइड्स आउटलाइन क्या है और टैक्सोनॉमी इसके हम, ठीक है, ठीक है। रिमेम्बरिंग, अब क्या रिमेम्बरिंग है, डिफाइन द कंपोजिंग, आइडेंटिफाई ऑफ द पर्पस, लिस्ट ऑफ द डिफरेंट, ठीक है, टैक्सोनॉमी इसके फोल्डिंग आपको दे दिया। क्या कर दिया, लेवल 1 क्या करना है आपको, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, ठीक है ना, एनालाइजिंग, एवुलेटिंग, क्रिएटिंग, ठीक है, ये सारी चीज। अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप इसके बारे में चाहते हैं, यू वांट टू नो अबाउट, कि इसके बारे में मैचिंग क्वेश्चंस कुछ बता दिए, तो आपको क्या करेगा, ये मैचिंग क्वेश्चंस जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, मैचिंग क्वेश्चन इट विल क्रिएटेड, ठीक है ना। सारे मैच द फॉलोइंग टर्म्स, तो मैचिंग क्वेश्चंस था, ठीक है ना। एरोबिक कंप्यूटर, ये पूरा, ठीक है, 1, ठीक है, प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग, ये सारे क्वेश्चंस आपको, ये आंसर भी दे दिया आपको कि इसका आंसर क्या है, आप बताइए, ठीक है। और इसके अलावा इफ यू वांट टू डिस्कस प्रॉम्प्ट, अगर आप इसको प्रॉम्प्ट्स इसमें अगर आप चाहते हैं कि काइंडली क्रिएट द सम प्रॉम्प्ट, तो यू क्या कर देगा, कुछ प्रॉम्प्ट्स का आपको क्रिएट करके दे देगा। देखिए ये प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे दिया। व्हेनेवर इफ यू वांट टू क्रिएट द प्रॉम्प्ट, यू गो टू चैट जीपीटी, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। चैट जीपीटी अगर हम यूज करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देख लेता हूँ कि जैसे कि अगर आपने ये ये अगर आपने क्रिएट करके किया है आपने, है ना, देखिए व्हाट आर द की प्रिंसिपल ऑफ द कंपोस्टिंग एंड कंट्रीब्यूट द प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस। तो यू कॉपी इट एंड गो टू द, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि चैट जीपीटी हमें यूज करना चाहिए ना, चैट जीपीटी हमें यूज है, चैट जीपीटी से हमारे, तो यू कैन राइट हियर द प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर क्या होगा, ये प्रॉम्प्ट पूरा आपको क्या कर देगा, इट विल बी क्रिएट द सोर्सेस, पूरा आपको बना के क्रिएट करके दे देगा, है ना। तो ये प्रॉम्प्ट क्या है, ये प्रॉम्प्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है चैट जीपीटी, है ना। जैसे देखा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, द वर्ड इज यूज फॉर द प्रॉम्प्ट इंजीनियर, इट विल क्लियर वेरी, ठीक है। तो पूरा आपको क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। तो पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो है ना, इसके फिर उसके बाद में हम इसको उसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तो ये देखिए पूरा, ये अब देखिए ये ऑप्शंस आ गए, ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इफ यू वांट टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यू कैन क्रिएट हियर, है ना, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको, ठीक है ना। डीप क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, डीप क्वेश्चंस आ जाएंगे। इफ यू वांट टू ये ना डीप क्वेश्चंस, यू कैन क्रिएट द डीप क्वेश्चंस, ठीक है। You can create the deep question discussion from matching questions. You can create the matching questions here. तो आपको each and everything is available in this AgUI, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, हमने इसके बारे में जान लिया, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट बंदा लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड सक्सेस क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव फॉर द क्लास एंड इसके फॉर द साइड ऑफ द रीच, ठीक है। अब हमने इसके बारे में डाल दिया। आई थिंक देयर इज अनदर टॉपिक इज आल्सो इन चैट बॉक्स, तो देख लेते हैं चैट बॉक्स में क्या गया। डियर पैरेंट कैंडिडेट, ओके सर आई विल सबमिट द पीपी। अच्छा, अनदर वन इज डिजिटल सिटीजनशिप, डिजिटल सिटीजनशिप, ठीक है ना। तो अब हम देखो इसके बारे में देखते हैं, डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में ये हमें क्या कहता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल लर्निंग ऑब्जेक्टिव सक्सेस क्राइटेरिया, तो फॉर एग्जाम्पल हम इसके डिजिटल, पहले तो हमने डिजिटल को सिचुएशनशिप को डाला और इनहेंस किया। इनहेंस मतलब हमने इसको क्रिएट कर दिया। स्टूडेंट विल बी डेमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिटल सिटीजन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस include ethical online behavior, responsible use of the technology and protections of the personal information, ठीक है ना। अब हमने जो भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, यू कैन क्या कर सकते हैं, यू कैन डिलीट इट, ठीक है। अब हमें एक नया टॉपिक मिला और नए टॉपिक पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द
डिजिटल सिटीजनशिप। ठीक है, इनहेंस कर लिया, पूरा टॉपिक बता दिया कि आपको क्या होगा, कैसे लर्न करेंगे। तो ऐड टू वर्क प्लेस पे जाएंगे, तो ऐड टू वर्क पेज पे जाएंगे तो पूरा आपको, ठीक है ना, क्रिएट करके दे देगा। ठीक है ना, क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल बी डेमोन्स्ट्रेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिटल सिटीजनशिप प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इंक्लूडिंग सक्सेस क्राइटेरिया, असेसमेंट मेजरमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें है ना, एंकर चार्ट भी बना सकते हैं आप, है ना, टैक्सोनॉमी इसका फॉर डिस्कशन फ्रॉम, ये सारी चीजें आप यू कैन क्रिएट, है ना। आप इसमें ऑप्शन ऑलरेडी ऑप्शन इज हियर। ठीक है ना, और इसके अलावा फॉर एग्जांपल इंगेजमेंट एक्टिविटीज है। ठीक है, स्पार्क क्यूरियोसिटी प्रमोट इंटरेस्ट एंड सस्टेनेबल, तो आप क्या है इंगेजमेंट एक्टिविटीज के बारे में। अब इनहेंस इसको कर लिया, क्या कर रहा है, ठीक है, स्टूडेंट विल बी डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग डिजिटल सेशन प्रिंसिपल इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें ना पोस्ट सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो इसको क्या किया, अब हमने इसको डिलीट कर दिया, यानी कि आपको करना है इसको कर दिया, और हम हमने इसको इनहेंस किया, तो वही सारी पूरी डिटेल इज अवेलेबल नहीं होती, पूरा पूरा एक्टिविटीज दे दिया कि हम लोग क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें, असेसमेंट मैनेजमेंट, एविडेंस स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखिए, प्रिसाइज रूब्रिक स्ट्रीमिंग एंड ग्रेडिंग प्रमोटिंग। हम लोग एविडेंस स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं कि हमने कहा कि काइंडली प्रोवाइड द एविडेंसेस, क्या होगा, इसके बारे में एविडेंस प्रोवाइड कीजिए कि ये किस लेवल पर है ना, किस लेवल पर है, नहीं एविडेंस स्टेटमेंट्स। तो अब हम जब एविडेंस स्टेटमेंट की किसी के बारे में करेंगे, तो हमें यहाँ पर एविडेंस स्टेटमेंट्स को हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये देखिए पूरा एविडेंसेस आएगा, रिमेम्बरिंग स्टूडेंट कैन बी रिकॉल द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट माइट से digital solution will involve the following the rules of the guidings and behavior responsible data set का अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, ये सारी चीजों पे क्या है, ये एविडेंस स्टेटमेंट्स बाय द engaging respectful online discussions and sharing reliable informations, we can contribute to the healthy digital community. On other hand, spreading false information or engaging the cyber bullying by the serious negative effect। ठीक है, तो ये क्या एविडेंसेस बेसिस है। तो ये सारी चीजें, लर्निंग स्टेशन क्या है, टेक्स्ट में लर्निंग स्टेशन, यू कैन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एथिकल ऑनलाइन बिहेवियर। ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में आपको, एथिकल स्टेशन वन क्या है, एथिकल कंसिडरेशंस ऑनलाइन बिहेवियर। ठीक है ना, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस, हाउ कैन यू बैलेंस, उसका पूरा आपको इसके बारे में क्वेश्चंस, हाँ क्या है, केस स्टडी एनालाइज स्टार्स रीड द केस स्टडी अबाउट द एआई डिजिटल सिचुएशन, वी शुड आंसर रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, व्हाट द एथिकल इंडिविजुअल, पूरी है ना, डिजिटल सिचुएशन रिफ्लेक्शन स्टार्स, पूरा आपको क्या क्या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सएमएल ऐसे रिव्यू। ठीक है ना, क्या होगा, ऐसे रिव्यू भी कर सकते हैं आप, क्या है, ठीक है, पूरा आपको ये रिव्यू टाइटल क्या है, ये डिजिटल सिटीजनशिप नर्चरिंग एथिकल बिहेवियर, इसके बारे में आपको पूरा क्या कर देगा, इंट्रोडक्शंस, बॉडी। ठीक है, ये क्या है, बॉडी एंड कंक्लूजन, तो क्या किया, एक आपको क्या किया, एक ऐसे है ना, लिख के क्रिएट करके दे दिया, तो और ऐसे ऑफ द रिफ्लेक्शंस क्या है, क्वेश्चंस है। तो ये दे रहा है सब, रूब्रिक भी, रूब्रिक क्या है, ठीक है, रूब्रिक भी क्रिएट करके दे सकते हैं अगर आपको, अगर आप चाहेंगे। ठीक है, तो क्या है, एथिकल ऑनलाइन बिहेवियर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो रूब्रिक भी ये आपको क्रिएट करके दे देगा एवरी, उसके हर चीज के बारे में, टोटल पॉइंट 3। ठीक है, पॉइंट 3 है रूब्रिक। use this rubric to assess the students understanding of the digital solution principle and practice at the post secondary level, assign point to the each specific criteria based on the level of proficiency। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें भी होगी। उस पे चैट पे, ठीक है, ओके। तो यू कैन क्रिएट द मेजरमेंट, लेसन प्लान, गर्ल्स 9 9 इवन इंस्ट्रक्शंस, लेसन प्लान 5 ही। ठीक है,
क्या है, देखिए ये लेसन प्लान उन्होंने क्या किया कि अगर आपको लेसन प्लान करना है ना, तो आपको और एलोबरेट किया, तो उन्होंने कहा 5E, 5E विच इज द 5E, देयर आर द लेसन प्लान में 5E's: इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट एंड एवुलेट। तो 5 E's है, तो हमने क्या कर दिया इसमें, हमने क्या, हम लोग इस तरह से अगर हम इसमें 5 लेसन 5 है, तो ये सारी चीजों को डिस्क्राइब कर देगा। ठीक है, इनहेंस, ठीक है, इनहेंस हो गया, इनहेंस। अब यू कैन गो टू ऐड, मतलब आपने ये देखिए पूरा ये आपको किसमें, 5 E's के मॉडल पर इंगेज, एक्सप्लोर, एलोबरेट एंड एविलेट। तो क्या कर रहा है पूरा आपको 5 E's के मॉडल्स को ये डिस्क्राइब की। वोकेबलरी, वोकेबलरी किया है, लेसन आउटलाइन इंगेज 5 to 7 मिनट है, एक्सप्लोर 10 to 10 मिनट्स, एक्सप्लेन, ठीक है ना, पूरा एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, यानी एक टीचर्स को whenever you are teaching the any subject about the digital citizenship, so you have use this the 5E models: engage, explore, explain, elaborate and evaluate। तो क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंगेज, 5 to 7 मिनट में आपको बिगिन द लेसन ऑफ द फोर्थ थॉट द प्रोवोकिंग, ये पूरा डिस्कस कर दिया। एक्सप्लोर 10 to 12 मिनट्स, ठीक है ना, एक्सप्लेन 10 to 12 मिनट, ठीक है, और एलोबरेट 10 to 12 मिनट, एवुलेट 5 to 7 मिनट, एंड कोर्स सिंथेसिस समराइज द की पॉइंट, ये पूरा आपको ऑप्शन ऑफ द डिफरेंशिएशन, प्रोवाइड द एडिशनल रिसोर्स, द रीडिंग मटेरियल, ठीक है, एक्सप्लोर द टॉपिक फॉर द असेसमेंट ऑफ द लर्निंग, एक्सेस, यू कैन create here the false and true note outline, jab activity, you can note what is the notes outline, you can create here the notes outline, ठीक है ना, instructions है ना, to the digital citizen of the a define the digital citizen the ethical outline behavior। तो ये क्या है, ये नोट आउटलाइन है कि आपको नोट करना क्या क्या चीज में आपको नोट करना है, ये क्या, सेंटेंस स्टीम लिस्ट क्या है, एंकर चार्ट क्या है, एंकर चार्ट अभी बताया था, लिस्ट क्या है, सेंटेंस स्टीम क्या है, सेंटेंसेस स्टीम्स, ठीक है, ठीक है, सेंटेंसेस स्टीम, एग्री, डिसएग्री, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, दिस इज द सेंटेंस स्टीम। आई एग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज, ठीक है, वन रीजन आई एग्री विद इज, इससे आप क्या करें, एग्री और डिसएग्री, ठीक है ना, किससे डिसएग्री, और लिस्ट क्या है, यू कैन क्रिएट हियर इधर लिस्ट आल्सो, ठीक है ना, तो क्या है लिस्ट, रेस्पॉन्सिबल, पूरा यू कैन क्रिएट अ लिस्ट, है ना, पूरा यू कैन क्रिएट अ लिस्ट हियर, ठीक है ना, sentence stream, you can create a list here, and you can anchor chart, I have already told you about the anchor chart, you can create here the anchor chart, है ना, पूरा एंकर चार्ट डिजिटल सिटीजन का पूरा क्या है, रेस्पॉन्सिबल यूज टेक्नोलॉजी, प्रोटेक्शंस, पर्सनल और प्लान सेफ्टी, डिजिटल फुटप्रिंट। तो ये क्या है, एंकर चार्ट है। तो अब हमने क्या किया, अब हम इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम इज नॉट हेयर। तो हमने इसको क्या किया, डिलीट कर दिया, चाहे कॉपी कर लें चाहे यहाँ से, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर लें। ट्रांसफॉर्म क्या है, चंक, अगर आपको चाहते हैं कि इसको फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू समराइज इट, यू कैन डू, ठीक है, इसको समराइज कर सकते हैं, यू कैन इफ यू वांट टू चंक टैग्स कर एक्सेप्ट कीवर्ड इंक्रीज लेक्सिन, इसको आप बढ़ाना चाहते हैं, यू कैन डू, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसको क्लोज करेंगे ऑल पार्ट। अब हम क्या है, नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्शंस। आप क्या है कि आपको डायरेक्ट जो भी करना है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड द एक्सप्लिसिट एंड स्ट्रक्चर टीचिंग एफिशिएंसी, कन्वे द स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ स्किल लर्नर, ठीक है, एलोबरेट एनालॉजी, ठीक है, स्लाइड्स आउटलाइन, एंकर चार्ट, we have already discussed, slide outline, note outline, we have already discussed, informative text and questions, list we have already, sentence system we have, demonstrations, है ना। तो अगर हम इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट क्वेश्चंस, अब अगर हम चाहते हैं कि इसके इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट प्लस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग इसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड वी है, तो पहले हमें इसे इनहेंस करना पड़ता है, इनहेंस करना पड़ता है, तो रिक्रिएट कर दिया ये पूरे इसको, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एट टू गो, हम जाना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया, अब हमें इसको उसने क्या कर दिया है,
क्या कर दिया, इन्फॉर्मेटिव टैक्स के बारे में दे दिया, ठीक है, क्रिएट कर दिया ये, और क्वेश्चंस कर दिए। तो हमें इंफॉर्मेशन टैक्स चाहिए और इसके बारे में हमें क्या कर दिया, और क्वेश्चन दे दिए कि व्हाट डज द डिजिटल रिफर टू। तो ये अब यहाँ से क्या हो सकता है, यू कैन यू कैन क्रिएट योर आंसर फ्रॉम दिस टेस्ट, ठीक है। इसको अगर आप हम चाहे तो थिंक पेयर शेयर, ठीक है ना। तो आप रीडिंग कंप्रहेंशन असाइनमेंट है, इन्फॉर्मेटिव टैक्स हम बता ही रहे हैं, थिंक्स पेयर इसके बारे में हमने बता ही दिया। डेमोस्ट्रेशंस क्या है, ठीक है, डेमोस्ट्रेशंस, इफ यू वांट टू clarify the reinforcement to be the learned material by the engaging student in the demonstration. Demonstration in the first of all we should here, ठीक है, हमें करना पड़ेगा। उसके बाद जब हमें आ जाएगा तो आप क्या करते हो, इसको आपने अगर इसको आप डिलीट कर दो या कॉपी कर लो, जो भी अब आप चाहें, ठीक है। और एड टू वर्क, तो डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, डिजिटल सजेशन इन कॉलेज, मेन आइडिया, ठीक है, जो है ना, स्क्रिप्ट ओपन सेंस कॉलेज क्लासरूम विद स्टूडेंट सीटेड टू द इंस्ट्रक्शन, तो क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, क्या ना, सीनियर सिटीजनशिप इन द कॉलेज क्लासरूम में क्या है, मेन आइडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द सिटीजन, digital suggestion and its importance, ethical outline of the behavior, responsible use of the technology, protection of the personal information, comparison offline versus online behavior, encouraging the student response। स्क्रिप्ट पूरा क्या हो गया, ये स्क्रिप्ट पूरा क्या कर दिया उन्होंने, राइट कर, इंस्ट्रक्शन क्या दे दिया, गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर, आप अरे स्क्रिप्ट है, क्या है इंस्ट्रक्शन, क्या, गुड मॉर्निंग क्लास, today we are going to delve into the world of the city digital citizenships and explore its principles and practice in the college level educational setting. Let us start by the understanding what digital citizens mean and why it's essentials. Slide डिजिटल सिटीजन में डिफाइन कर दिया उन्होंने, क्या है, स्टूडेंट वन, ठीक है ना, स्टूडेंट वन क्या है, इट हेल्प अस नेगेटिव एंड डिजिटल वर्ल्ड सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, पूरा ये स्क्रिप्ट लिख के दे दी। स्लाइड एथिकल ऑनलाइन भी है, इंस्ट्रक्शंस ये दे दिया, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रैक्टिकल, कि हाउ टू डू प्रैक्टिकल एंड एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, तो ये पूरा आपको, ठीक है ना, समरी स्लाइड से पूरा आपको पूरा बता के देगा। टुडे बी आर एक्सप्लोर द प्रिंसिपल प्रैक्टिकल, पूरा आपको इंस्ट्रक्ट। थैंक यू ऑल योर पार्टिसिपेशंस टुडे, लेट अस कंटिन्यू टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन आवर डिजिटल लाइव्स एंड स्ट्राइव बाय द रेस्पॉन्सिबल डिजिटल। तो अब इसके बारे में क्या है, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू गो टू द चैट एंड यू कैन आस्क हियर, एंड चैट इज एज चैट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट है, क्या है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है, एलोबरेट द एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं, एंकर चार्ट, स्लाइड्स आउटलाइन, इंफॉर्मेटिव नोट्स आउटलाइन, लिस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस एंड सेंटेंस स्टीम, ठीक है ना। तो द नेक्स्ट पार्ट इज द इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में क्या कह रहे हैं, ऐसे रिवीजन, ठीक है, एग्जाम्पलर ऐसे रिव्यू, क्या, ECER मतलब क्लेम एविडेंस एंड रीजनिंग, मॉक स्टडी, ठीक है। ECR के बारे में क्या है, वी आर क्लिक हियर एंड गो टू द इनहेंस, ठीक है ना। तो ये हो गया, इनहेंस कर दिया, अब हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ECR क्लेम एविडेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। ECR के बारे में हमें क्या करना है, ठीक है ना, यू को, ठीक है ना। तो ये क्या है, सिनेरियो, क्लेम एविडेंस रीजनिंग, क्या एविडेंसेस है, कहाँ से हमने लिया है, ये सारी चीजें है ना, सिनेरियो इन द चैलेंजेस। तो हमें एविडेंस डाटा सेट क्या है, कि यहाँ से देखिए, ये उन्होंने वेबसाइट, हमें वेबसाइट URL प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। कंटेंट, ये कहाँ से कंटेंट किया, यहाँ से क्या है, क्लेम, ठीक है ना। LX डेमोन्स्ट्रेशन, सब क्लेम क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल सिस्टम प्रिंसिपल प्रैक्टिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, एविडेंसेस, ठीक है, क्या है, एविडेंसेस, हमने वहां क्या किया था, एविडेंसेस, एविडेंसेस क्या है इसके, LX रेफरेंस शेयरिंग URL कंटेंट फ्रॉम द विद द अदर ट्रेवलिंग स्प्रेड। तो हमें क्या हो गया, दिया हमने जो दिया ये यहाँ से हमारे इससे कंटेंट से ये लिया गया। रीजनिंग क्या है, एलेक्सन एक्शंस अलाइन, पूरा ये दे दिया। क्राइटेरिया, रेफरिंग फ्रॉम द शेयरिंग योर वेक्टर कंटेंट,
ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ द वेबसाइट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी वन, educating the peers about the note to the four teachers. Please delete the claim, evidence and reasoning selections to the provide this assignment to the student. डिस्कशन प्रॉम्प्ट क्या है, रीडिंग कंप्रेशन अलाइनमेंट क्या है। ठीक है, तो CER आपको समझ में आ गया। मोक स्टडी, मोक स्टडी वो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन मोक स्टडी एक बार आपको और प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि मोक स्टडी एक्चुअली कहती क्या है। मोक स्टडी, तो अब ये पूरा चेंज कर दिया ना, मोक स्टडी वी कैन गो हियर, वी फाइंड आउट द मोक स्टडी द टाइटल एंड, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, पूरा हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। पूरा जो भाई जो भी आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ में रिसर्च करते हैं आपने ना, PhD रिसर्च है या कोई प्रोजेक्ट की रिसर्च है, व्हेनेवर यू आर यूजिंग द सच टाइप द मोक स्टडी फॉर द एब्स्ट्रैक्ट्स हियर, ठीक है। अगर आपको पेपर राइट करना है उसके लिए भी, ठीक है ना, हाइपोथेसिस हियर, डाटा सेट हियर, the study involved a sample 200 college students from the various disciplines. The data is collected from the various part of the 3 months with the participant completing पूरा आपको participant demographic, age, gender, major. Study survey responses, level of awareness, practical task है, questions about the result of the study, ठीक है ना। क्वेश्चंस अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्टडी के बारे में दीजिए, रीडिंग कंप्रहेंसिव CCR, ये पूरा आज का पेयर्स दिया हुआ, इस पे आप यू कैन गो एंड यू कैन राइट डाउन। तो आपको क्या किया पूरा जो मोक मोक स्टडी के बारे में, एवल्यूटिंग द सजेशन प्रैक्टिस कॉलेज स्टूडेंट, ये स्टडी ऑन आर्टिकल ऑनलाइन बिहेवियर रिस्पॉन्स यूज द स्टडी ऑफ द प्रोफेशनल, ठीक है। तो पूरा आपको एब्स्ट्रैक्ट सारी टाइप सबके बारे में यू कैन नो अबाउट, ठीक है। अब ये कीवर्ड असाइनमेंट, तो कीवर्ड असाइनमेंट क्या कर रहा है, कीवर्ड असाइनमेंट क्या कर रहा है, हमने यहाँ से इनहेंस किया, इनहेंस करने के बाद हमने से डिलीट किया। अब ठीक है, हमें क्या करना है, अब हमें ऐड टू वर्क करना कीवर्ड, कीवर्ड असाइनमेंट, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी विद द शॉर्ट, ठीक है ना। तो ये क्या कर देगा, पूरा टाइटल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेटिंग, इंट्रोडक्शंस, ठीक है। टेक्स्ट क्या है, इट इन द टूडेज टेक्नोलॉजी, टेक्स्ट क्या है, पूरे टेक्स्ट के बारे में। लास्टली, ठीक है, क्वेश्चंस क्रिएट कर दिया, नो द आंसर मे बी वेरी बट यू शुड द रिफ्लेक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, टेक्स्ट एंड मैचिंग क्वेश्चंस, ये सारे हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक्सटेंशन वर्कशीट क्या है, वर्कशीट एडिशनल वर्क फॉर द रीइंफोर्समेंट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, यानी स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हम वर्क करेंगे वो एक्सटेंशन वर्कशीट है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ क्रिएट किया, ठीक है ना, ठीक है, इनहेंस किया, ठीक है। अब आपको क्या कर दिया, ये आपको क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। वर्कशीट हमने कल वर्कशीट के बारे में पढ़ा था, ये भी वही एक्सटेंशन वर्कशीट है, वर्कशीट, ठीक है। नेम, डेट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, रेस्पॉन्सिबल यूज द टेक्नोलॉजी, ये पूरा उन्होंने आपको क्या किया है, ये वोकेबुलरी मैचिंग क्वेश्चंस, ठीक है। वोकेबुलरी मैचिंग विच द फॉलोइंग सिनेरियो डेमोन्स्ट्रेट ऐसे यूज द टेक्नोलॉजी, तो ये पूरा देखिए वोकेबुलरी मैचिंग को ऑप्शन ए, साइबर बाइंग, ये सारा पैसेज सिनेरियो क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। क्वेश्चन व्हाट शुड द टर्म इज सिचुएशंस, है ना, हर चीज के रिडल्स क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन, इसके बारे में आपको दे दिया। रिमेंबर टू आंसर ईच क्वेश्चंस आर कंप्लीट ईच टास्क रोली गुड लक, ठीक है ना, इन विच ऑफ द, ये सारी चीजें यू कैन गिव योर स्टूडेंट द एक्सटेंशंस वर्कशीट ना, आपको बता दे सकते हैं इसमें ना, कि क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। द नेक्स्ट वन इज वी विल डिस्कस अबाउट द रीडिंग कंप्रेंशन असाइनमेंट, वो आपको मैंने बता दिया किस तरह से है ना, एक्टिविटी क्रिटिकल रीडिंग, रीडिंग स्किल एंड ऑपरेशंस, है ना। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में भी मैंने बता दिया, लेकिन हम वी कैन गो इन द रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो हम रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, देखिए पूरा आपको रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिस्कस कर देगा कि किस तरह से हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, कंडक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक पे, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल सिस्टम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस पे, हाउ टू कंडक्ट द रिसर्च, ठीक है ना। तो उन्होंने सारे स्टेप्स दे दिया, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स बता दिया, कंडक्टिंग रिसर्च बता दिया, सोर्स एनालाइज द क्वेश्चंस बता दिया, ठीक है। वेबसाइट सोर्स वन, वेबसाइट सोर्स टू एनालाइज क्वेश्चंस, वेबसाइट सोर्स थ्री, ठीक है ना,
स्टेप क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन डेवलप पूरा स्लाइड क्राइटेरिया पोस्ट क्राइटेरिया प्रोवाइड द एडिशनल्स, ठीक है, ये एक्सटेंशन वर्कशीट है, डिबेट है। हाँ, डिबेट, इफ यू वांट टू क्रिएट अ डिबेट फ्रॉम दिस यू कैन गो इन डिबेट, यस एक्चुअली दिस एक्सटेंशन ऑलरेडी हैव इट, ठीक है। तो डिबेट को अपोजिट स्लाइड क्वेश्चन सिंथेसाइज द अपोजिंग, तो पूरा ये डिबेट, ठीक है, ये सारी चीज को ये क्रिएट करके दे दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रिसर्च प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये क्या है, देखिए जिस पे एक्टिविटीज के बारे में हमने, डिबेट के बारे में हमने दिया। मॉडल क्या है, मॉडल, ठीक है, मॉडल सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्लान टू क्रिएटिंग ए मॉडल, ठीक है ना। मॉडल के बारे में अभी हमने ठीक है। तो ये क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल इनहेंस किया, इनहेंस करने के बाद यू कैन क्रिएट योर, है ना, ठीक है। तो ये पूरा गैदर एवरीडे मटेरियल लैब डिटरमाइन, तो ये पूरा आपको क्या है कि मॉडल बना के दे दिया कि आपको क्या करना है, ठीक है। असाइनमेंट आइडियाज, ये पूरा एक आपको एक लैब मटेरियल लिस्ट, अब देखिए आप इधर लैब मटेरियल लिस्ट, इफ यू वांट टू क्रिएट दिस यू गो द लैब मटेरियल लिस्ट। तो आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पर, ठीक है, लैब मटेरियल लिस्ट में मटेरियल क्या क्या होने चाहिए, लैब प्रोसीजर क्या होने चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है ना, ये सारी चीजें, सिनेरियो एनालिसिस, ये पूरा एक प्रैक्टिकल क्रिएट करके दे दिया आपको ना, एक प्रैक्टिकल क्रिएट करके दिया, मॉडल क्रिएट करके दे दिया। तो ठीक है, आप यू कैन वो लैब प्लस मटेरियल, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अभी हम मॉडल्स के बारे में, लर्निंग स्टेशन, स्टेशन इज द विच द स्टूडेंट इंगेज विद द कंटेंट स्पेसिफिक टास्क, लैब मटेरियल थिंक वे शेयर्स, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो क्या कहता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है पूरा आपको, देखिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है, अब हमने ये कर लिया, ऐड टू वर्क, ठीक है। तो आप क्या करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में, प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट का टाइटल दे दिया, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल दे दिया, रिसर्च एनालिसिस दे दिया, कंपेन डिजाइन दे दिया, एजुकेशनल रिसोर्सेज दे दिया, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रमोशंस, एवल्यूशंस एंड रिफ्लेक्शंस, प्रोजेक्ट टाइमलाइन 1 2, रिसर्च एनालाइज वीक, इतना पूरा आपको दे दिया। 1 से 2 रिसर्च एनालाइज वीक है, ठीक है। 3 to 4 कंपेरिजन डिजाइन इमोशनल एजुकेशनल रिसोर्सेज वीक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रमोशन वीक, एवल्यूशन ऑफ द रिफ्लेक्स, पूरा आपको टाइम भी दे, एवल्यूशन क्राइटेरिया क्लैरिफाई द इफेक्टिवनेस, यानी यहाँ पर जो एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट योर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड योर सब्जेक्ट, यू कैन गो एंड डू इन दिस इन प्रैक्टिकल, ठीक है। इंगेज स्टूडेंट कोलैबोरेटिव, देखिए ये आपको टीम बेस्ड एक्टिविटीज, तो टीम बेस्ड एक्टिविटीज में क्या है, ये थोड़ा सा है इनहेंस चेंज कर दिया, यू कैन गो, किस तरह से उन्होंने आपको टीम बेस्ड एक्टिविटीज, मतलब एक स्कूल में एक टीम क्रिएट किया और उसके बाद में आपको उसकी एक्टिविटीज को क्रिएट किया, ठीक है ना। तो यू कैन क्रिएट, देखिए ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं, डिवाइड द क्लास इनटू द टीम ऑफ द 2 and 3 स्टूडेंट ईच, provide the each team with the set of the digital sessions principal and practical on focus of the during scavenger hunt, explain that the team will have a set of the time, इतना का आपको ये पूरा आपको इंस्ट्रक्शन पे रखे, और कैसे आप टीम बेस्ड एक्टिविटीज को क्रिएट करा सकते हैं किसी भी टॉपिक पे अपने, ठीक है। एविडेंस स्टेटमेंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, एक्सटेंशन वर्कशीट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्रियर नॉलेज एंड स्केफोल्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो दिस इज द क्या है, ये हमने एक जो कंटेंट जो जनरेटर के बारे में हमने डिस्कस कर दिया ना, इसमें क्या है कंटेंट, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अदर वन इज असिस्टेंट, तो हमें क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हमने क्या है इसका पूरा डिस्कशन कर लिया। द नेक्स्ट वन इज हमारा क्या है, असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हमने अभी हमने किया, तो इसमें क्या है 3 पॉइंट से दिया, प्रोफेशनल ड्यूटी, एक्सेसिबिलिटी एंड वेलनेस। तो हमें इसमें क्या है, जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल
आपको किसी भी क्लास का कोई क्लास अनाउंसमेंट करना है, कीप क्लास इन्फॉर्म एंड इंगेज स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन ऑन द LMS और अदर सिस्टम। देखिए फॉर एग्जांपल आपको किसी के क्लास को, की भी क्लास को क्या करना है, आपको क्लास का अनाउंसमेंट करना है, कीप क्लास इन्फॉर्म। ठीक, क्लास के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्म टेक्स्ट ईमेल आउटलाइन गाइड राइटिंग, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपको कहना है इंटर द टॉपिक, यानी किसी टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जांपल आपका जो टॉपिक था वो क्या था, डिजिटल डिजिटल सिटीजन्स का टॉपिक है, और आपको क्लास का अनाउंसमेंट करना है वेन एवर। देखिए आपको ना ये पूरा थोड़ा सा इनहेंस कर देगा, इनहेंस कर देगा, ठीक है। इनहेंस करने के बाद क्या होगा, आपको ये पूरा क्लास का अनाउंसमेंट क्रिएट करके दे देगा, एक टॉपिक पे आपके पूरे क्लास का अनाउंसमेंट क्रिएट करके दे देगा, ठीक है ना। बीनियर स्टेट इंडियस, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया उन्होंने, इसको, ठीक है। तो इसमें क्या था, इससे गलत था, ये तो दूसरी लैंग्वेज, ये पूरा क्या ना, अटेंशन कॉलेज स्टूडेंट प्लीज द रिमाइंडर द एग्जिबिट द रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल बिहेवियर ड्यूरिंग। तो ये क्या हुआ, पूरा एक आपको जो क्लास का अनाउंसमेंट आपको क्रिएट करके दे दिया ऑटोमेटिकली ना। ठीक है, आप लिखेंगे इतने करेंगे, लेकिन ये उसने पूरा लिख के दे दिया। इस तरह से ईमेल आउटलाइन, फॉर एग्जाम्पल टेक्टफुल ईमेल आउटलाइन फॉर योर राइटिंग, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इसको ईमेल आपको आउटलाइन करना है, तो आपको यहाँ पर ये भी आप क्रिएट करके देगा ईमेल की आउटलाइन, ठीक है ना, किसी भी टॉपिक पे, ठीक है ना। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट इनकरेजिंग, ठीक है। डियर पेरेंट्स आई होप द ईमेल फाइंड, वो ईमेल पूरा राइट करके आपको क्रिएट करके दे देगा किसी भी टॉपिक पे, ठीक, ठीक है ना। इसके बारे में स्कूल नेम, टीचर टाइटल, इसके बारे में, ठीक है। सब सब्स्टिट्यूट प्लानर, ठीक है, प्लान फॉर द स्मूथ क्लासरूम मैनेजमेंट इन सबसे, ठीक है। ये आप कर लेंगे तो ये आपको क्रिएट करके दे देगा, यू कैन क्रिएट यार, ठीक है ना। क्लासरूम रूल्स, रिमाइंडर फॉर सब्स्टिट्यूट, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको क्रिएट करके देंगे, ठीक है। न्यूज़ लेटर आउटलाइन भी, ठीक है, न्यूज़ लेटर आउटलाइन आपको, न्यूज़ लेटर भी आउटलाइन करके दे देगा आपको, ठीक है। टाइमिंग भी आपको पूरी मॉर्निंग स्कूल डे शेड्यूल, असाइनमेंट आइडियाज पूरा आपको क्रिएट करके दे दिया है सबसे क्लियर, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं यूज आउटलाइन, यू कैन गो क्रिएट ईयर इनहेंस द टेक्स्ट, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसको न्यूज़ लेटर को आउटलाइन, इंसर्ट डेट है ना, डियर पेरेंट्स एंड गार्जियंस, इम्पोर्टेंट डेट ईयर, ठीक है ना। आपको यहाँ पर पूरा अगर आपको चाहते हैं तो पूरा आपको यू शुड क्रिएट ईयर ना। अब हर चीज़ को आपको करना पड़ेगा तब जाके, जैसे कि न्यूज़ लेटर आउटलाइन, रिपोर्ट एंड कमेंट, इफ यू वांट टू रिपोर्ट्स एंड कमेंट, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब हमने तो सब्जेक्ट डाला था, लेकिन हमने रिपोर्ट्स एंड कमेंट्स के बारे में करना है। फॉर एग्जांपल कमेंट डायरेक्टली टूवर्ड्स द ग्रेड अर्न बाय द स्टूडेंट, है ना। तो जो भी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो भी डिटेल डालना पड़ेगी, डिटेल क्या डालना पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल राकेश कुमार कुमार इज वेरी गुड स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, ये सारा बता दिया, डिटेल बता, मैं डिटेल तो बताना पड़ेगी ना, अगर डिटेल आप नहीं बताएंगे तो क्या करें। तो हमने इनहेंस किया,
इनहेंस करने के बाद इन्होंने ये स्टूडेंट ये पूरा आपका इम्प्रूव कर दिया। इम्प्रूव करने के बाद क्या है, देखिए हमने जब जब यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड एक क्रिएट किया है ना, रिपोर्ट कार्ड क्रिएट किया, ऐड टू रिपोर्ट कार्ड, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट हुआ रिसीव एन ए इन देयर रिपोर्ट्स कार्ड, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सरसाइज प्रोफेंसी मैथमेटिक्स, ये पूरा फोर स्टूडेंट हुआ रिसीव द बी, तो ये पूरा आपके क्या गया, रिपोर्ट कार्ड है ना, पूरा दे दिया, ठीक है। तो ये चीज क्या कर दी, ये पूरा आपका डेमोन्स्ट्रेट इनसफिशिएंट प्रोफेंसी इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, डेमोन्स्ट्रेट लिमिटेड फ्रॉम, तो ये क्या गया, फॉर स्टूडेंट हुआ रिसीव द ए ग्रेड, पूरा बता दिया आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें है। अब नेक्स्ट वन इज, हम लोग आएंगे एक्सेसिबिलिटी, आईपीएफ आउटलाइन ऑफ द कम्प्रेहेंसिव आईपीएफ सपोर्टिंग इंडिविजुअल एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन हमने ले लिया, एकोमोडेशन स्टूडेंट एकोमोडेशन इंश्योरिंग इंक्लूसिव बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान, ठीक है ना। लेक्सिल इंक्रीज बढ़ाना है घटाना है, उसको बढ़ाना है या घटाना है, एक्शन स्टेप इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम की एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या है, डिजिटल की हमें करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें डिलीट करना पड़ेगा इंक्लूसिव सिचुएशंस, हैड टू वर्क स्पेस, ठीक है, पूरा आपका ये पूरा आपका क्रिएट ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वन इज वेलनेस, इम्पैक्टफुल एक्टिविटीज फोरकास्टिंग टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होता है, माइंडफुल एक्टिविटीज, ठीक है। आइस ब्रेकर एंगेजिंग प्रमोटिंग डिजिटल सिटीजनशिप लेसन, ठीक है। जो डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में तो उन्होंने क्या किया, ये ऑलरेडी तो यहाँ पर क्या है ना, डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में एक पूरा एक कॉलम, डिजिटल सिटीजन लेसन के बारे में एक पूरा कॉलम दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या है ये, ठीक है। अब ये क्या है, डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में क्या गया, लेसन दिया गया, पूरा डिजिटल सिटीजन लर्निंग लेसन सेफ एंड एथिकल बिहेवियर 10 मिनट्स, तो यू कैन क्रिएटिव एक्टिविटीज फॉर, ठीक है। ये हो गया, क्लोजर डिस्कशन क्वेश्चंस यू कैन डू, ठीक है ना। तो ठीक है, इसके बाद में फीडबैक बोर्ड है, वह चैट के बारे में बता दिया, असेसमेंट बिल्डर्स है, ठीक है ना। असेसमेंट बिल्डर क्या है, इसके बारे में असेसमेंट बिल्डर है, इंटर द टॉपिक यार, ठीक है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस, ट्रू एंड फॉल्स, स्टार्ट, फिल इन द ब्लैंक, मेंशन ऐसे, ठीक है ना। ग्रेड लेवल क्या है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, यहाँ पर आपने जो भी डालना चाह रहे हो उसके बारे में क्या होगा, ये पूरा क्या गया, क्रिएट कर देगा, आप क्या चाह रहे हो, जनरेट किसके बारे में क्वेश्चंस करना चाह रहे हो, जनरेट करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये आपको असेसमेंट, ठीक है, जब पूरा आपको, ठीक है ना, ये आपको कर देगा। ट्रू एंड फॉल्स के बारे में चाह रहा है, इफ यू वांट टू, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स जनरेट क्वेश्चंस, ठीक है ना, ट्रू एंड फॉल्स के बारे में आ जाएगा। इफ यू वांट टू शॉर्ट आंसर, ठीक है ना, यू कैन जनरेट या शॉर्ट आंसर, ठीक है ना। इफ यू वांट टू फिल द ब्लैंक्स, यहाँ पर आ जाएगा जनरेट, ठीक है ना। इफ यू वांट टू मैचिंग क्वेश्चंस, यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है ना। और इफ यू वांट टू राइट ऐसे, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या असेसमेंट दिया रहेगा, ये पूरा आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद इफ यू वांट टू ऐसे, हम यू कैन गेट हियर ऐसे, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्वेश्चंस क्या है, ये सारा एडजस्ट डिफिकल्टी, ठीक है, ऊपर इसको पढ़ना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस,
ठीक है ना, और एक्सप्लेन कर देगा, पूरा और एक्सप्लेन कर देगा, और यू वांट टू एडिट इट, यू कैन, हो जाए। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, तो ये ऐसे 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 वन ऐसे टू ऐसे two, तो ये क्या कर दिया, ये आपको पूरा ये क्वेश्चंस, ये असेसमेंट बिल्डर है, ये पूरा क्वेश्चंस आपको बना के दे दिया है ना। आप इसको इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू वर्क प्लेस पे आप उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिजिटल सिस्टम को लेसन के द्वारा वर्क प्लेस पे आ गए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आ गए इस पे। तो ये क्या है, ये क्या हमारे हमने क्या किया, ये यहाँ पर असेसमेंट बिल्डर एजुचेट चैट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये एजुचेट क्या है, एजुचेट एक्चुअली, ठीक है ना, व्हाट द सब्जेक्ट टॉपिक है, ये पूरा जो अभी हमने डिस्कस किया था एजुचेट ना, ये वो एजुचेट। ठीक है ना, तो अब एजुचेट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अब क्या है, जो भी हमारा जो कंटेंट है ना, यू सेव सेव कंटेंट हियर, यहाँ पर एक ऑप्शन से सेव कंटेंट हियर। ठीक है ना, तो अब क्या है, सेव कंटेंट हियर, जो भी हमने असेसमेंट किया है डिजिटल, देखिए हमने जितना भी यहाँ पर जो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, यहाँ पर जो सारे सारे क्या है, सारे यू कैन सी है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन रिव्यू, आपने जो भी डिस्कस, आपने जो भी सर्च किया है, जो भी काम किया है, यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा सारा, एक पूरे सेव न्यूज़ लेटर, सब्सटाइटल, ठीक, यहाँ पर जितना भी आपने किया था, ठीक है, जितना भी शुरू से लेके आपने CR किया, ठीक है, यहाँ पर 10 मतलब रो जो है रूब्रिक किया, ठीक है, हमने जो भी किया, ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, ऑल क्लासेस, अब जो भी ऑल क्लासेस का न्यू क्लासेस सर्च, जो भी अगर हम चाहते हैं, यू कैन सर्च फ्रॉम हियर, जो भी हमने चाहिए चाहिए मैचिंग क्वेश्चंस, ठीक है ना, हमने ये सारे किया था। जितना भी हमने वर्क यहाँ पर किया है, द वर्क हैव ऑलरेडी, मतलब क्या हो गया यहाँ पर सेव हो जाता है इसमें ऑटोमेटिकली इसके अलाउट में। ठीक है, इसलिए विसिट तो वही है कि सबसे पहले क्या था, ये तो ऑलरेडी पहले हमने किया था। ठीक है, अक्टूबर 5 तो ये पहले हमने अगस्त में किया था, लेकिन अभी अभी हमने जो शुरू किया, तो अक्टूबर 5 से रिव्यू गेम्स लेसन सीट्स, हमने क्या किया, लेसन सीट्स, हमने लेसन सीट से किया, यहाँ से लेसन सीट्स हो गया पूरा। ठीक है ना, अब हमने शुरू यहाँ से किया था, फिर हमने उसके बाद यूनिट प्लान किया, एंकर चेक किया, फिर लेसन सीट किया। ठीक है ना, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसको किया। देखिए टाइम भी आ रहा है, आपने किस टाइम किया क्या है, किस टाइम आपने क्या किया है, एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड यार, एंकर चार्ट, ठीक है ना, सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, यू कैन यूज एनी टाइम। ठीक है, तो आई थिंक्स ये जो टूल्स है एजुएट सबको समझ में आ गया होगा, और जो समझ में नहीं आया है, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो द अनदर अनदर tools we will discuss here, what the tools is here, ठीक है, प्लेटो AI। ठीक है ना, अभी हमने क्या है, हमने अब प्लेटो AI के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, प्लेटो AI भी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चार चीज़ है। चार चीज़ क्या है, होमवर्क, एज ए राइटर, समराइजर एंड टेक्स्ट बुक चैट, हम इसमें भी सारी चीज़ हमारी जो भी ना सेव हो जाती है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल होमवर्क, ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टाइप और पेस्ट योर क्वेश्चंस हियर। ठीक है, या फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट एनी, यानी आपका जो भी होमवर्क है, यू कैन सेलेक्ट हियर, अपलोड योर होमवर्क हियर फ्रॉम जो PDF, JPG, JPG ले से, और कोई भी फाइल यहाँ पर होगी, उसको आप होमवर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई, फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है, आपने ये होमवर्क कर लिया, तो आपने क्या किया, ऐड ईयर, स्टार्ट होमवर्क। आपने क्या किया, कोई भी क्वेश्चंस डाला तो यह आपको क्या कर देगा, पूरा आपको होमवर्क क्रिएट करके दे देगा, एक्सप्लेन करके दे देगा व्हाट इज द डिजिटल सिस्टम, एक्सप्लेन विद द। तो अभी इसमें क्या गया, राइट योर क्वेश्चंस हियर, सबमिट आंसर हियर, हिंट, एक्सप्लेन। ठीक है ना, तो ये क्या, क्वेश्चंस वन राइट हियर, राइट योर आंसर हियर, ठीक है, हिंट क्या है, ठीक है, देखिए, कंसीडर यूजिंग स्ट्रक्चर आउटलाइन बोल रही है, ठीक है, एक्सप्लेन, ठीक है, देखिए पूरा, ये पूरा एक्सप्लेन होके आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, आप यहाँ पर इसको कॉपी करके यू कैन, ठीक है, सबमिट आंसर कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो सॉल्यूशंस इज हियर, सॉल्यूशंस इज हियर, ठीक है ना, सॉल्यूशन आ रहा है डिजिटली, ये क्या है, सॉल्यूशन ये है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जो होमवर्क को यहाँ से जो भी आप चाहते हैं ये आप क्रिएट कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हैं, और और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबमिट योर आंसर, आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, यस इट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, ये पूछ रहा था क्या ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट, यस इट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हाँ ये इट इज करेक्ट है। इसके अलावा आप प्लेटो से यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं, यू कैन यू कैन आस्क हियर। तो इसको क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि काइंडली, आपको एलेबरेट करना है तो ये एलेबरेट कर देगा पूरा, ठीक है। तो ये आपको आंसर एक्यूरेट या एक्सप्लेन डिजिटल सोल्यूशन ये पूरा, मतलब जो भी अगर आप चाहते हैं ना, आज का प्लेटो प्लेटो वो आपको सारी चीज़ों को कंसीडर कर देगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इन हियर, वी विल डिस्कस अबाउट द कि किस तरह से ऐसे राइटर, तो ये क्या है, ऐसे राइटर भी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि, फॉर एग्जाम्पल और कोई टॉपिक है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास क्या था, डिजिटल, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं डिजिटल, डिजिटल सिटीजनशिप पे हम लोग का वर्ड काउंट, ठीक है, डाल सकते हैं इसमें, है ना, क्या कर सकते हैं। तो ये क्या कर देगा, पूरा आपको एक स्पेशलाइज क्या कर देगा, और आपको ये पूरा एक सिटीजनशिप पर आपको इट्स कैन बी क्रिएटेड एक ऐसे। अच्छा, साइटेशंस क्या है, देखिए साइटेशंस ऑलरेडी गिवन इन दियर, ये यहाँ से ले गया है, ठीक है ना। ये साइटेशंस भी आपको प्रोवाइड कर दिया है इसने, कि भाई जो आपको जो ये जो ऐसे लिखा गया कहाँ से लिखा है। तो अब इसमें क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंजेस यार, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एडिट कर सकते हैं हम, यहाँ को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत इजीली है, बहुत बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, इसको हम पॉइंट में ले सकते हैं, ठीक है ना, हम इसको अ, कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि जो ऐसे लिखा गया है वो मेरे मतलब का नहीं है ना, इसमें कुछ और चेंजेस करना है, तो यू कैन आस्क द प्लेटो हियर के चेंज, क्या करना है, क्या क्या पूछ रहे हैं आप, चेंज और चेंज और टेक्स्ट, क्या है यार, रीराइट, री राइट ऐसे। तो आपको क्या कर देगा, ये पूरा आपके रीराइट करके दे देगा, ठीक है? पूरा आपको रीराइट करके दे देगा ऐसे, ठीक है, ये आपको रीराइट करके दे देगा, आपको साइटेशंस में पूरा पूरा भी रीराइट करके दे देगा ये, है ना। तो ये एक्सप्लेन है, सिमिलर क्वेश्चंस डन। अब आपको और एक्सप्लेनेशन का कहना है तो यू कैन क्लिक हियर, एक्सप्लेन कीजिए उसको, और ठीक है, हमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, एक्सप्लेन किया गया उन्हें एक्सप्लेनेशन कर दिया, या सिमिलर क्वेश्चंस चाहिए, इफ यू वांट टू सिमिलर क्वेश्चन, जो भी अब आप चाहते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, जो भी आप चाहते हैं यू कैन डू हियर, है ना, इससे रिलेटेड।
अब अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है वो फीचर्स है, ठीक है, समराइज। या आप इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन समराइज। ठीक है, क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टाइप द पेस्ट योर टेक्स्ट, टेक्स्ट भी आप पेस्ट कर सकते हैं, और यू कैन ड्रॉप हियर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक एक फॉर एग्जाम्पल हमने एडवांस डिजिटल टूल्स फॉर क्रिएटिव इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशंस, एआई टूल्स फॉर टीचिंग क्लासरूम, स्लाइड प्रेजेंट इंटरनेशनल फॉर एग्जाम्पल लर्निंग वन, लर्निंग टू, फॉर एग्जाम्पल हमने वेस्ट मैनेजमेंट, देखो क्या है इसमें, क्या करा है, हमने एक फाइल डाउनलोड की वेस्ट मैनेजमेंट की, सेलेक्ट फाइल की, ठीक है ना। अब नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा ये आपको, ठीक है, इसमें क्या है, इतने करेक्टर है, इतने वर्ड्स है। अब इसको क्या करना चाहते हैं आप, पैराग्राफ्स में बनाना, बुलेट में चेंज करना था, ऑप्शन है, टेक्स्ट है, या फिर इसको कितना समराइज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते थे इसमें हमें 50 वर्ड्स, वी नीड ओनली 50 वर्ड्स, तो हमें क्या चाहिए, 50 वर्ड्स में चाहिए, यू कैन गो देयर एंड समराइज दिस टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल 50 वर्ड्स, ठीक है, ठीक है, 54 वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल आप, तो आपको ये क्या कर देगा, पूरा ये आपको 50 वर्ड्स में समराइज करके दे देगा ना, लेट टू डेट्स करेंट डेट, ठीक है, पूरा क्या करा, समराइज कर दिया वेस्ट मैनेजमेंट का, कितने 50 वर्ड्स में चाहते हैं। और अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इसमें डेफिनेशन वेस्ट मैनेजमेंट ये चाह जो भी चाहते हैं ना, इफ यू वांट टू एलिबरेट इट, इस आप इसको कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं ना, बार बार रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये इसको ब्लैंक है, ये आप रख सकते हैं। तो ये कह रहा है इसमें आप कोई सा भी पेस्ट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, कुछ भी किताब से, कुछ टेक्स्ट बुक से, कि फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट, इंटर द टेक्स्ट बुक टाइटल, फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट बुक, क्या डिजिटल सजेशन पे कोई आपने किया है, तो फॉर एग्जांपल हमने टाइटल डाल दिया, टाइटल डालने के बाद हमने कोई बुक स्टार्ट टॉकिंग, टॉकिंग कैसे होगा देखते हैं क्या कराएंगे। तो इन्होंने ये वर्ड्स दे दिया, लेकिन हम अब आप इसके बारे में उन्होंने एक वर्ड दे दिया कि हमें इतना हो, लेकिन हमें क्या, एक बुक का, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ना कोई भी बुक होगा, कोई बुक की पीडीएफ फॉर्मेट है ना, हम यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल कोई बुक की किसी की पीडीएफ फॉर्मेट को हम यहाँ पर क्या कर दें, फॉर एग्जांपल ये बुक है, हमारे पास ये बुक है, स्टार्ट टॉकिंग, ठीक है, हमने ये एक बुक को हमने इसमें क्या कर दिया, ये हमने इसमें I am sorry, but based on the provide content, there is no specific questions mentioned in the text. ठीक है, हमने यहाँ पर कोई भी अपना डीजी, ठीक है, डिजिटल डिजिटल लर्निंग, अब हमने क्या किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टीचिंग लर्निंग, ठीक है ना। तो हमने ये जब किया, हमने डाउनलोड किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर लर्निंग, ये हो गई पीडीएफ स्टार्ट टॉकिंग, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब ये कह रहा है कि आपने जो ये सारे ना डिजिटल लर्निंग हमने बहुत सारा ये पूरा कर लिया। अब इसमें से आप अभी वांट टू वन की एडवांटेज डिजिटल लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी, ये पूरा इसने दे दिया, कंक्लूजन शॉर्ट में दे दिया, ठीक है, करेक्ट इसने वर्ड इसने। अब हम यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर हम इससे कुछ भी आस कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हम वी कैन आस्क किया।
है ना, कुछ भी। अब ये क्या कर दिया, इसका जो फ्री वर्जन था वो खत्म हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए फिर यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है ना। तो ये क्या है, इसमें फोर फोर पॉइंट्स इज हियर, फ्लटर टूल्स आर हियर, ठीक है। तो आपका क्या है, 2 days है, आपने क्या कर लिया है, पूरा खत्म कर लिया है। डोंट ब्रेक योर स्टिक, मेक श्योर प्रैक्टिकल यूज, ठीक है ना, तो हो गया। तो ये याद हो, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क है, ऐसे राइटिंग है, समराइज है, टेक्स्ट, ये सारी चीजें इसमें है, हम लोग डिस्कस करते हैं प्लेटोस में, ठीक है ना। ठीक है ना, तो अब ये प्लेटो हो गया। प्लेटो के बाद हम लोग नेक्स्ट वन इज, वी विल डिस्कस अबाउट चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी के, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल्स नो अबाउट द चैट जीपीटी एग्जैक्टली क्या होती है, ठीक है ना। अब इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, वेन एवर यू हैव इन योर माइंड यू कैन राइट हियर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना, उस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पर राइट करेंगे तो यू कैन गो गॉड एनीथिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट क्रिएट लेसन प्लान ऑन किस पे, डिजिटल सिटीजनशिप विद मिशन एंड, ठीक। तो अब क्या कर रहे हैं, ये है, तो क्रिएट लेसन प्लान ऑन डिजिटल। अब हमने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट कहलाता है ना, प्रॉम्प्ट भी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्चुअली आपके क्या माइंड में है ना, ये आपको नहीं पढ़ सकता, यानी चैट जीपीटी आपको नहीं बता सकता आपके क्या माइंड में, जो आपने लिखा है। वेन एवर यू राइट एनीथिंग यू गेट द आंसर, ठीक है। क्रिएट लेसन प्लान और डिजिटल सिचुएशन विद द क्वेश्चंस एंड आंसर, तो ये क्या कर देगा, पूरा आपको, आप हर चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देगा, है ना, पूरा लेसन प्लान क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। है सारा चीज पूरा, पूरी सारी चीज को क्रिएट कर देगा, जिस तरह से हमने वर्ड, गूगल बार्ड किया था, लेकिन ये उसका उसका फादर है, समझ लो। चैट जीपीटी में बहुत सारे ऑप्शन है, पूरा एकदम असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर, आंसर है ना, क्वेश्चन आंसर आंसर भी आपको, ठीक है, आंसर, वी कैन अप्लाई प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ दैट, हाउ टू अप्लाई, तो क्वेश्चंस एंड आंसर को भी आप उसने जनरेट करके दे दिया, ठीक है ना, कि सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल अब हमें करना है कि क्रिएट ए रिपोर्ट कार्ड मुकेश कुमार who is, ठीक है। तो अब आप क्या कर देगा, रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करके दे देगा आपको। और अगर आप यहाँ इसमें के कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार, सब्जेक्ट नंबर अगर आप इसमें इंटर करेंगे तो वो भी क्रिएट करके दे देगा पूरा, तो रिपोर्ट कार्ड तैयार करके दे देगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, ठीक है ना,
देखिए पूरा ये सब्जेक्ट ग्रेड मैथमेटिक्स ए डी इकोनॉमिक्स ये पूरा हिस्ट्री है ना, प्रैक्टिकल फिजिकल ओवरऑल कमेंट। ठीक है, मुकेश कुमार हैज द शोन द कमेंडेबल परफॉर्मेंस मोस्ट, पूरा क्या कर दिया, पेरेंट्स गार्जियन सिग्नेचर्स। तो ये क्या कर दिया, ये पूरा रिपोर्ट्स कार्ड आपको तैयार करके दे दिया है, ये रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दिया, जो भी आप चाहेंगे वो एवरीथिंग इज, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ इकोनॉमिक्स लिखा है लेकिन हमने सब्जेक्ट यहाँ पर ये दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट में जो भी होगा वो लिख सकते हैं, तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। यानी जो हमने पहले सीखा है, हमने जो जाना है, उसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, जो आप समझ सकते हैं, जो सोच सकते हैं, जो आपके माइंड में हो सकता है, वो सारी एक्टिविटीज को कर सकता है। कि फॉर एग्जाम्पल क्रिएट डिबेट ऑन डिबेट ऑन सीनियर सिटीजन एंड ए, ठीक, तो वो क्या कर देगा, पूरा आपको क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो क्या करेगा, टॉपिक क्या है, डिबेट टॉपिक क्या है, शुड डिजिटल सिटीजनशिप एजुकेशन विद मैंडेटरी अवेलेबल स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो ये क्या टाइम मैनेजमेंट, ये पूरा आपको फर्स्ट स्पीकर 5 मिनट, सेकंड 5 मिनट, थर्ड स्पीकर रिबूटर, पूरा आपको मॉडरेट, ठीक है ना, पूरा आपको क्या कहा, फर्स्ट स्पीकर अफर्मेटिव 5 मिनट। ठीक है, तो पूरा आपको डिबेट के बारे में आपको, है ना, आपको क्या कर देगा पूरा एकदम, है ना, ऑडियंस बोर्ड अनाउंसमेंट विनर, तो पूरा एक प्लान क्रिएट करके दे दिया है ना, हर चीज क्रिएट करके दे देगा, मतलब जो भी आपके माइंड में होगी, है ना, वो सारी चीजों को ये क्रिएट कर सकता है इजीली। तो आई थिंक सब लोगों के समझ में आया होगा। और इफ यू हैव, देन नाउ वी विल हैंड अप इट। ठीक है, तो दिस इज अवर कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है ना, you can mail it, you can go to our website Bharat Digital Academy, you can WhatsApp 80065330, okay? And thank you very much for your attentions. Today's presentations is over and this workshop is over. We will see you on next uh, workshop. We will announce it shortly, है ना। तो now if you have any questions, you can you can ask. Yes, I request the all participant kindly open your camera for a screenshot. I request the all participant kindly open your camera for a screenshot. We will share the screenshot for you, है ना। और dear participant kindly fill the feedback form. Feedback form I have given the, और feedback link is there, गूगल लिंक इज दियर, है ना। तो गूगल लिंक पे भी अपना अगर आप अपना रिव्यू दे देंगे तो इट इज बेटर फॉर अस। ठीक है ना, तो आई रिक्वेस्ट द ऑल पार्टिसिपेंट्स, इफ यू हैव नो प्रॉब्लम तो काइंडली ओपन योर कैमरा इज दियर। यस, काइंडली ओपन योर कैमरा। ओके, ओके, आई रिक्वेस्ट द ऑल पार्टिसिपेंट काइंडली ओपन कैमरा और आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी डाउट regarding the all PPTs. We will share the video recording, we will share the video recording and I will send to you the certificate, tomorrow or after tomorrow. Yes, dear participant, kindly open your camera. Otherwise, we will end it here. If you have any questions, then you can ask. I am audible, ना? ऐसा तो नहीं मैं audible नहीं हूँ। I am audible, ना? Yes, 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 yes. Yes,
You can open your camera. I request the all participants kindly open your camera, but I can't open my video camera. Acha. And another word, kindly open your camera. If you have no problem, Anil Kumar Chaudhary. I think so. Tapan Barvi. Oh, thank you. Good. Okay, very. And another word is okay. Okay. If you have any questions regarding this workshop, otherwise we will end it. You can ask. You have any questions, you can ask. Okay. Okay, see you. है ना? Thank you and thank you very much for coming this wonderful sessions we have conducted on this two-day workshop on teaching excellence. Okay, goodbye.